नमस्कार, मैं आशा गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। आसनसोल में सफाई की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। भाजपा नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी जमुरिया के बीजपुर गांव पहुंचे। आसनसोल कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 16 और 17 दिसंबर के लिए व्हिप जारी किया। किसान नेताओं ने रेल रोको ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों के दिल्ली मार्च के एक और प्रयास को विफल करने के बाद किसान नेताओं ने 18 दिसंबर को पंजाब में 3 घंटे की ट्रेन नाकाबंदी का आह्वान किया है और 16 दिसंबर को कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बनाई है। शंभू बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प के बाद शनिवार शाम को 101 किसानों के समूह द्वारा दिल्ली मार्च स्थगित कर दिया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने किसानों को घग्गर नदी के पुल पर लगाए गए बैरिकेड्स पर रोक दिया। किसान नेता सरवन पंधेर ने दावा किया कि झड़प के दौरान 17 किसान घायल हो गए, जिसमें हरियाणा के सुरक्षा बलों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए। उन्होंने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि पुलिस किसानों को निशाना बना रही है और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचने से रोक रही है। पंधेर ने हरियाणा पुलिस पर किसानों को तितर-बितर करने के लिए घग्गर नदी से रसायन मिश्रित पानी का इस्तेमाल करने और एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले दागने का भी आरोप लगाया। एक अन्य किसान नेता मंजीत राय ने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने रबर की गोलियां चलाई, जिससे एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अंबाला कैंट के पुलिस उपाधीक्षक रजत गुलिया ने इन आरोपों से इनकार किया। खन्नौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के किसान नेता जगजीत सिन्हा दल्लेवाल ने लगातार 19वें दिन भी भूख हड़ताल जारी रखी। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई है। आसनसोल में सफाई की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पुइतांडी क्या कहते हैं। দলের লোকজনরা মানে কাউন্সিলরের কিছু লোকজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেটুয়া কাউন্সিলরের পেটুয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 2019 সালে সেই পেটুয়ার দল আমাদের দলের কাছে হেরে যায়। আবার 2024-এর 28শে আগস্ট আমাদের নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে 13-0 রেজাল্ট হয়। এখানকার মানুষ আমাদেরকে নির্বাচিত করে। তারপরে আমি এই সোসাইটির সেক্রেটারি হওয়ার পর থেকে তিনবার ওনাকে অনুরোধ করা হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের দুবার অনুরোধ করেছে, চেয়ারম্যান সাহেব দুদিন ফোন করেছে। প্রথমে বললো দুর্গা পূজার আগে হয়ে যাবে, তারপরে বললো কালী পুজোর আগে হয়ে যাবে, বললো ছট পুজো পেরিয়ে যাক, বললো মেলাতে আপনার 50টা করে কর্পোরেশনের লেবার কাটবে, আর আমরা যারা ট্যাক্স দিই আমরা কোথায় চা দোকান কোথায় মদ দোকান সেখানকার নোংরা এনে ফেলে দেবে, কোথায় বেড়াল মরবে কোথায় কুকুর মরবে এনে আমাদেরকে সহ্য করতে হবে। এখানে আনন্দ মেলা ফ্ল্যাটের লোকেরা আছে, তাদের ঢোকা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। নবরণ্যার মানুষজন আসা যাওয়া বন্ধ করছে, নাকে ঢাকা নিয়ে যেতে হচ্ছে। কেন আমরা কোথায় পাস করব? এই কাউন্সিলর আমাদের এখানে একটা পিএইচই জলের লাইন ছিল, কর্পোরেশনের জলের লাইন আমরা 28 লক্ষ টাকা দিয়ে নেওয়ার পর ও জলের লাইনটা আমাদের পিএইচটা বন্ধ করেছে। ওখানে 42 লাখ টাকা আমাদের দেওয়া আছে। এই অনিমেষ দাস ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কিছুভাবে পেরে না উঠে এখন আমাদের প্রতি এরকম প্রতিহিংসামূলক কাজ করছে। কি না, আমরা মেয়র সাহেবকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমাদের এই মোড়টাতে দুর্ঘটনা ঘটছে, দুটো বাম্পার দেওয়া করান, এখানে একটা হাইমার্কস লাইট লাগিয়ে দিন। মেয়র সাহেব অর্ডার করে এখানে করিয়েছেন, রাস্তাটা করে দিয়েছেন। ওর রাগ যে কেন আমার কাছে এলো না, মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করে করলাম। আমরা আসানসোলের মহানগরীর কাছে যাই, বানানোর পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা বানানোর পর এই যে যাদের ডাম্পার চলছে, এই যে চোরেদের লোহা চোরেদের বেলোডার এনে একদিন ভেঙে দিতে যাচ্ছিল, এসে প্রতিবাদ করাতে আটকেছে, পরবর্তীকালে আবার এটা বানানো হয়েছে। এই হচ্ছে এই এখানকার কাউন্সিলরের নবরণ্যা, এই আনন্দ মেলা, এই কুমারপুর গ্রামের মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার। এ চাই ওর পা চেটে থাকতে হবে, ওর পেটুয়া হয়ে থাকতে হবে। আমরা ওর পেটুয়া হয়ে থাকবো না। ও শুনে নি, ও যদি চাই আমরা আরো এর চেয়ে বড় এই নোংরা ওর বাড়ির দরজায় ফেলে দিয়ে আসবো। এই নোংরা ওর বাড়ির দরজায় ফেলবো।
ও কত বড় হনু আছে দেখবো। विधायक व मेयर विधान उपाध्याय ने माइथम पिकनिक स्पॉट में स्वागत द्वार सहित कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। माइथो से मनोज शर्मा के नया साल बस कुछ ही दिन दूर है। लोगों के लिए नए साल का मतलब खुशियों से भरा होता है, इसलिए पिकनिक का मौसम दिसंबर महीने से शुरू होता है और मैथन जलाशय पश्चिम बर्दवान में पर्यटन केंद्रों में से एक है। इसलिए हर साल मैथन में पिकनिक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग जुटते हैं। इसलिए हर साल की तरह मैथन के प्रवेश द्वार पर बाराबनी विधायक और मेयर विधान उपाध्याय ने रिबन काटकर स्वागत द्वार का उद्घाटन किया। इसके अलावा इस दिन उन्होंने उद्घाटन के साथ मैथन डैम का भी दौरा किया। उन्होंने कल्याणेश्वरी चौराहे पर नगर पालिका द्वारा निर्मित एसी बस स्टैंड का उद्घाटन किया। वहीं प्रतापपुर गांव में 15वें एफसी फंड से करीब 15 लाख रुपए खर्च कर सड़क कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही मेजलाडी और रामचंद्रपुर गांव में एक सबमर्सिबल पंप का उद्घाटन किया। भाजपा नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी जमुरिया के बीजपुर गांव पहुंचे। क्षेत्र में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) परियोजना ने स्थानीय निवासियों को भारी पीड़ा पहुंचाई है। लगातार ब्लास्टिंग से मकान ढह रहे हैं। जितेंद्र तिवारी ने इलाके के लोगों से बात की और उनके घरों की क्षति की स्थिति का निरीक्षण किया। घर की दीवारों में दरारें, टूटी छत और जर्जर जमीन देखकर वह दुखी हुआ। दौरे के बाद जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों से कहा, ईसीएल की इस परियोजना से इलाके के गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। तृणमूल नेताओं को लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। हम गरीबों के हक से खिलवाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित घरों की सूची तैयार की जाएगी और अंत तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा इस मुद्दे पर पुरजोर विरोध करेगी और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देगी। आसनसोल कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। आसनसोल से बीनू श्रीवास्तवा के आयोजन अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री गोपाल कुमार डालमिया, जिला न्यायाधीश श्रीमती अमरपाली चक्रवर्ती, सचिव डीएलएसए पश्चिम बर्धमान थे। आइए सुने लोक अदालत के बारे में आयोजकों का क्या कहना है। आज क्या क्या हुआ है लोक अदालत में? देखिए, आज हम लोग का नालसा माने नेशनल लीगल सर्विसेज की तरफ से 4th नेशनल लोक अदालत फॉर द ईयर 2024 ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें से हमारे यहाँ पे कुल 10 बेंच बैठाया गया था, 6 आसनसोल में और 4 दुर्गापुर सब डिवीजन में। तो कुल मिला के हम लोग करीबन 18,500 केस लिए थे, पेंडिंग और लिटिगेशन केसेस मिला के, जिनमें से 11,500 केसेस था लिटिगेशन और बाकी 7,000 केसेस आसपास थे पेंडिंग केसेस। और यहाँ में से अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है हम लोगों के पास, वो 18,500 केसेस में से हम लोगों का करीबन पेंडिंग केसेस लिटिगेशन केसेस में सेटल हुआ है हम लोग का 1,000 के आसपास, और 7,000 जो है पेंडिंग केसेस उसमें से हम लोग का सेटल हुआ है करीबन 5,000 के आसपास। फाइनल रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है, लेकिन फिर भी हम अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको दे पा रहा हूँ अभी तक। ये है साल का आखिरी लोग 2025 में। हमारा अगला लोक अदालत है 8 मार्च को। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रक्तदान शिविर आयोजना। पुरुलिया वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ तथा पुरुलिया जिला कमेटी की पहल पर डीएम कार्यालय में शनिवार को रक्तदान शिविर में 100 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर उपस्थित राज्य के पूर्व मंत्री शांतिराम महतो, पुरुलिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एमएसवीपी सुकोमल विषय, पुरुलिया जिला परिषद सभाधिपति निवेदिता महतो, नगर पालिका चेयरमैन नवेंदु महाली सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। पुरुलिया सदर अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए शनिवार को आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री शांतिराम महतो ने कहा कि जिले में रक्त की कमी है। उस समय जिस तरह से सरकारी कर्मचारी आगे आए हैं, ये वाकई सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्था के ये सदस्य अलग अलग समय पर लोगों के साथ खड़े रहे हैं
और आज रक्तदान शिविर के माध्यम से शहर के लोगों के साथ खड़े हैं। मधुपुर स्टेशन का पुनर्विकास। आसनसोल पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान मधुपुर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बेहतर ट्रेन संचालन और यात्री सेवाओं के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। कोचिंग कॉम्प्लेक्स, स्पाट शेड और 140 टन के ब्रेकडाउन क्रेन की सुविधाओं के विकास सहित चल रही परियोजनाओं का उद्देश्य महत्वपूर्ण रेलवे संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए स्टेशन की क्षमता को बढ़ाना है। जसीडीह और इसके आसपास के क्षेत्रों से खुलने वाली लंबी दूरी वाली ट्रेनों के रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के लिए मधुपुर स्टेशन पर एक अत्याधुनिक कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। 21.29 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही इस सुविधा में कैटवॉक, स्टेबलिंग लाइन, कोच की मरम्मत के लिए ईओटी क्रेन से सुसज्जित सिकलाइन शेड और सर्विस बिल्डिंग, कंप्रेसर रूम और 50,000 गैलन पानी की टंकी जैसे संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ 600 मीटर लंबा रखरखाव पिट होगा। स्टेबलिंग लाइनों और अन्य सुविधाओं के युतिकरण से इसकी परिचालन क्षमता में और वृद्धि होगी। ये आधुनिक परिसर स्टेशन को स्थानीय स्तर पर ट्रेन रखरखाव को संभालने में सक्षम बनाएगा, जिससे अन्य हब पर निर्भरता कम होगी और समय की पाबंदी में सुधार होगा। ट्रेन के पटरी से उतरने या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान ट्रेन संचालन को तेजी से बहाल करने के लिए मधुपुर स्टेशन को 140 टन की ब्रेकडाउन बीडी क्रेन से भी लैस किया जा रहा है। 6.06 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ ये महत्वपूर्ण उपकरण रेलवे पटरियों से बाधाओं को हटाने और क्षतिग्रस्त कोचों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्रेन शेड के लिए नींव का काम पहले ही शुरू हो चुका है, जो आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की मधुपुर की क्षमता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके अतिरिक्त स्वचालित दुर्घटना राहत ट्रेन स्पाट के लिए एक समर्पित शेड का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए परियोजना के लिए ₹2.42 करोड़ आवंटित किए गए हैं। नींव का काम पूरा हो चुका है और संरचनात्मक निर्माण कार्य चल रहा है। ये सुविधा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए स्टेशन की तत्परता को बढ़ाएगी, सेवाओं की त्वरित बहाली सुनिश्चित करेगी और ट्रेन संचालन में व्यवधान को कम करेगी। दक्षता में और सुधार करने और बढ़ते रेल ट्रैफिक को समायोजित करने के लिए मधुपुर स्टेशन पर ₹40 करोड़ की अनुमानित लागत से एक व्यापक यार्ड रिमॉडलिंग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण, लंबी ट्रेनों को समायोजित करने के लिए मौजूदा रेल लाइनों और प्लेटफॉर्म का विस्तार और नई पूरी तरह कार्यात्मक लाइनों के लिए रास्ता बनाने के लिए अप्रयुक्त लाइनों को हटाना शामिल है। ट्रेन संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित शंटिंग नेक भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुरूप सुरक्षित और अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण के साथ एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। आसनसोल पूर्व रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक DRM ने नामित शाखा अधिकारियों के साथ इन चल रहे कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आज मधुपुर का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना और समय सीमा और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। मधुपुर स्टेशन का पुनर्विकास परिचालन लचीलापन और यात्री संतुष्टि का समर्थन करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये परिवर्तनकारी परियोजनाएं मधुपुर को पूर्व रेलवे नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी, जो दक्षता और विश्वसनीयता के साथ नियमित और आपातकालीन दोनों परिचालनों का प्रबंधन करने में सक्षम है। अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वाले हुए गिरफ्तार। IT पेशेवर अतुल सुभाष आत्महत्या के मामले में बंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता की मां निशा सिन्हानिया और भाई अनुराग सिन्हानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी जिले के किस स्थान से हुई है, इसके बारे में स्थानीय पुलिस कुछ भी बताने से कतरा रही है। प्रयागराज पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। बंगलुरु की पुलिस ने कब और कहां से गिरफ्तार किया है, इसकी स्पष्ट
जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस अतुल के सास और साले को लेकर बंगलुरु लेकर रवाना हो गई। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 16 और 17 दिसंबर के लिए व्हिप जारी किया। भाजपा ने संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर दिसंबर के 16 से 17, 2024 को राज्यसभा में विशेष चर्चा के लिए सभी सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को सोमवार 16 दिसंबर और मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस विशेष चर्चा का उद्देश्य संविधान के महत्व, इसके मूल सिद्धांतों और 75 वर्षों में इसके योगदान पर चर्चा करना है। सरकार इस मौके का उपयोग संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए कर रही है। भाजपा ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि इस विशेष चर्चा के दौरान सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही पार्टी ने इसे एक महत्वपूर्ण अवसर करार देते हुए सभी सदस्यों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की है। रानीगंज मास्टर प्लान पैकेज में होगा बदलाव, पीएचई काटेगा अवैध कनेक्शन। आसनसोल कोयलांचल में रानीगंज मास्टर प्लान के तहत भूत धसान प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वास देने तथा पीएचई के पानी के पाइपलाइन से अवैध रूप से कनेक्शन लेने के मुद्दों को लेकर आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम वर्धमान जिला शासक एस पोन्नाबलम मंत्री मलय घटक, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, जमुरिया के विधायक हरे राम सिन्हा, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी के अलावा जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का। It is only the farms who faithfully plants seeds in the spring who reaps a harvest in the autumn. केवल वही खेत हैं जो वसंत ऋतु में ईमानदारी से बीज बोते हैं और पतझड़ में फसल काटते हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।